याद करा दिया फिर मिस हो जाना। थैंक यू। Thank you, Timur. अच्छा जी. So today we are going to start chapter number 18. As we know that from this week, from the last lecture, we have started the portion mass transport, the last and final portion of transport phenomena course. So as in chapter 2, we studied the shell momentum balance, and subsequently in chapter 10 we studied the shell energy balance. On the similar lines, in chapter number 18 we are going to study the shell mass balance, and ultimate objective will be to find the concentration profile, the concentration distribution, the distribution of any chemical species in the space. That is a concentration profile or concentration distribution. And as we can see from the title of the chapter, we would restrict ourselves to the laminar flow and solids. It means the derivations, the systems, the models developed in this chapter would apply only to the laminar flow and to the steady state flow. So, what is a general mass balance equation? The general mass balance equation is the rate of mass of A in minus rate of mass of A out plus rate of production of mass A by homogeneous reaction is equal to 0. So basically the general mass balance equation is in minus out plus generation minus consumption is equal to accumulation. So as we are going to use the steady state system, for the steady state system, we have considered the rate of change with the time 0. So we are applying the steady state assumption, therefore it becomes equal to 0. And this is a term rate of mass of A. A is any component. There may be a mixture of the component, there may be multi-component mixture, and in that multi-component or binary mixture, the component will be designated as A, B, C, D, E, and so on. So component A mean any component may be in a, you can say the, if there is a mixture of the gases CO2, N2, CO, CH4 is there. So A would be a specific component. So we know that the mass balance always applied on a specific component. So if we apply a mass balance for a component A, then we would write down the rate of mass in minus out plus rate of production. So it is production, then it would be positive, and if it is the consumption, it would becomes automatically negative, equal to 0. So generally in the mathematical form, if we want to write down the flux of A, so NAZ mean N represents the molar or the mass flux. A mean the component. So we are talking about the molar flux or mass flux of component A. Z, the second subscript Z represents the direction. So there would be a direction of the mass transfer always. So NAZ mean the total combined flux of A in the Z direction. The flux may be molar flux, the flux may be mass flux. So we know that the mass is transferred due to two mechanisms. One is the molecular flux and other one is the convective flux. So the molecular flux is written by using the mathematical expression like that of the Fick's law. That is the diffusivity of A into B, partial X A or partial Z. In the last lecture we have studied this is a concentration gradient, like partial T or partial Z, the temperature gradient, and the partial B our partial Z, the velocity gradient. The third one is the concentration gradient. But we have studied in chapter 17 in the lecture that this XA is not concentration. It is concentration in terms of the fraction. So therefore partial XA or partial Z change in the fraction of A. It is a some
the same as the concentration gradient. So this is the fraction, and C, this C is the molar density, molar concentration. So क्योंकि यहाँ पर पार्शियल CA और पार्शियल Z नहीं आया, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाती डेरिवेटिव में तो ये C यहाँ पर नहीं आना था। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए बाहर जो है डिफ्यूजिविटी के साथ जो है वो we have to multiply the concentration density, concentration of A per unit volume. So the total combined flux of A constituted the two parts. One part is due to the molecular movement, यानी किसी भी एरिया में NaZ क्या है जी, कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो उस एरिया जो यूनिट एरिया हमने स्पेस के अंदर फिक्स कंसीडर किया है, जिसके अंदर से ए का फ्लक्स जा रहा है, ए के नंबर ऑफ मोल्स जा रहे हैं। तो किस वजह से जा रहे होंगे? दो रीजन की वजह से, दो मैकेनिज्म से। एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जिसका एक्सप्रेशन हमने अभी देखा है, एंड सेकंड इज द कन्वेक्टिव फ्लक्स है, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी बल्क फ्लूइड की मोशन की वजह से भी ए के मॉलिक्यूल जो है पास हो रहे होंगे। तो बल्क मोशन को हम किस तरह लिखेंगे? हम कहेंगे उसको NaZ की फॉर्म में ही लिखेंगे कि NaZ प्लस NBZ, या ये हो गया टोटल फ्लो। ठीक है, अगर बाइनरी मिक्सचर हो तो NaZ प्लस NBZ ये हो गया टोटल फ्लो। तो टोटल फ्लो के साथ XA की जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा हमें जो A कंपोनेंट है उसका फ्लक्स मिल जाएगा, उसका फ्लो मिल जाएगा। मींस कि हम अगर टोटल फ्लो के साथ जो A की फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल फ्लो में, तो हमें जो A का फ्लो है वो मिल जाएगा। तो XA जो हो गया वो A की फ्रैक्शन हो गई, और टोटल फ्लो को हमने लिख लिया है NaZ प्लस NBZ considering the binary mixture. So this is an expression for the combined flux of component A in a binary mixture. NaZ is the total molar flux, moles per unit area per unit time. So it can be represented by the conduction or molecular flux and convective flux. तो यहां तक कोई क्वेश्चन हो बेटा? जी बेटा जी 232 CH 232। यस सर। जी बेटा आपको कुछ समय लगी है? यस सर, समय लगी है। जी 228 ओके जी। अब्दुल वासे बेटा आपको सर ये बस नॉर्मल क्वेश्चन था, तो नॉर्मल कनेक्टिव फ्लक्स वाला क्वेश्चन था। NBZ जो है इसमें क्यों ऐड होगा? ओके बेटा। एमन यूनस जी, एमन यूनस। यस सर। जी बेटा आपको समझ लग गई है? यस सर। इक्वेशन को बेटा ये दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं, समरी इसकी शॉर्ट में? NaZ इज इक्वल। यस सर। हम सर सबसे पहले हमने शेल मास बैलेंस लगाया, उसकी इक्वेशन है रेट ऑफ मास ऑफ A in माइनस रेट ऑफ मास ऑफ A आउट प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मास ऑफ A बाय होमोजेनियस सेक्शन। प्रोडक्शन है तो कंजप्शन है तो नेगेटिव आएगा, और NaZ जो है वो कंबाइंड फ्लक्स है, जो A की डायरेक्शन, जो A जो कंपोनेंट है वो Z की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और माइनस C डिफ्यूजिविटी ऑफ AB पार्शियल XA और पार्शियल Z प्लस XA NaZ प्लस NBZ। NaZ प्लस NBZ जो है वो टोटल फ्लक्स है, और जब आप उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वेक्टिव फ्लक्स हो जाएगा, और जो ये पार्शियल XA और पार्शियल Z है वो मॉलिक्यूलर फ्लक्स है।
वेरी गुड बेटा, आपने ठीक कहा. Okay, secondly we have to talk about the reacting system and the non-reacting system. The mass balance is very complex. So if it is a non-reacting system, the production or the consumption term obviously will become zero. But if it is a reacting system, then we have to consider the production or the कंजप्शन टर्म. इट मींस कि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो काइनेटिक इक्वेशन है, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन है या जो कंजप्शन है वो केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट की जाएगी, और केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट की जाएगी तो इट मींस कि उसकी जो काइनेटिक इक्वेशन होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, वो अपीयर हो जाएगी. तो रिएक्टिंग सिस्टम जो होते हैं, नॉन रिएक्टिंग हो गए तो मसला ही खत्म हो गया ना. अगर रिएक्टिंग सिस्टम हो तो इट मींस कि काइनेटिक इक्वेशन आएगी. तो बेटा जो रिएक्टिंग सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं. रिएक्टिंग सिस्टम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज द होमोजीनियस रिएक्शन एंड अदर इज द हेट्रोजीनियस रिएक्शन. सो यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 18 के शुरू में सेकंड पेज पे वो थोड़ा सा इस चीज को भी डिस्कस करता है कि क्या हम जो मास बैलेंस इक्वेशन है, आइदर वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑन द रिएक्टिंग सिस्टम और ऑन द नॉन रिएक्टिंग सिस्टम. If it is the non-reacting system, the system will become very easy because the production or the condensation term will become zero. But if it is the reacting system, the chemical reaction is going on, then we have to see that is the reaction is homogeneous or is the reaction is heterogeneous. In homogeneous reaction, we know that the homogeneous means the single phase reaction. The whole reaction, the reactants and the products and the unwanted product and everything is the same phase. Like CSTR हो और CSTR में एक liquid phase reaction हो रहा हो या gas phase reaction हो रहा हो, तो वो homogeneous reaction होगा कि reaction में हर जगह single phase है और पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो है वो रिएक्शन हो रहा है. सो जो होमोजीनियस रिएक्शन होते हैं वो पूरे वॉल्यूम की बेस पे होती है, और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और हम जो है वो होमोजीनियस रिएक्शन लिख, तो होमोजीनियस रिएक्शन जो सोर्स टर्म आएगी वो वॉल्यूम सोर्स टर्म आएगी. अगर मास बैलेंस इक्वेशन के अंदर जब हमने प्रोडक्शन की टर्म लिखनी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए देखें वो कह रहा है बाय होमोजीनियस रिएक्शन, तो सोर्स टर्म जो होगी वो वॉल्यूम सोर्स टर्म होगी कब, जब होमोजीनियस रिएक्शन हो रहा होगा. होमोजीनियस रिएक्शन का क्या मतलब है जी कि रिएक्शन all is the gas phase or all is the liquid phase like in the CSTR. अच्छा, जो homogeneous reaction है ना, उसका जो rate of reaction होता है that is equal to RA is equal to K N triple prime CA raised to the power N. So अगर आप अपनी जरा केमिकल थियरी थोड़ी सी रिवाइज करते हैं तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरह लिखते हैं कि K होता है रेट कांस्टेंट, CA होता है कंसंट्रेशन, और n जो सुपरस्क्रिप्ट n होता है दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन और दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. सो ये जो आर ए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोडक्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ये होगा पर यूनिट वॉल्यूम की बेस के ऊपर. तो याद रखने की चीज ये है कि जब होमोजीनियस रिएक्शन होता है बेटा, तो वो पर यूनिट वॉल्यूम की बेस पे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि वो पूरे रिएक्टर के अंदर हर जगह पर इक्वली हो रहा होता है और पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर जो होता है वो साइमल्टेनियसली रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है. लेकिन हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन मीन नंबर ऑफ फेसेस आर इन्वॉल्व्ड. फॉर एग्जांपल हेट्रोजीनियस रिएक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी जी कैटालिटिक रिएक्शंस. ठीक है, वो जो है वो फिक्स बेड है, उसके अंदर रिएक्टर के अंदर कैटालिस्ट लगा हुआ है. अब जब कैटालिस्ट लगा हुआ है रिएक्टर के अंदर, तो इट मींस कि रिएक्शन जो हो रहा होता है वो पूरे रिएक्टर के अंदर नहीं हो रहा होता, बल्कि वो जहां पर कैटालिस्ट के पार्टिकल पड़े हुए हैं उन कैटालिस्ट पार्टिकल की सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है. तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो होता है दैट इज नॉट गोइंग टू अकर इन द होल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर. द हेट्रोजीनियस रिएक्शन ओनली अकर एट द स्पेसिफाइड रीजन, at the specific regions. And what are these regions? What are these spots? These are the surface of the catalyst. So अगर एक रिएक्टर के अंदर कैटालिस्ट भरा हो, कैटालिस्ट किस तरह का होता है जी? जस्ट लाइक स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हो. ठीक है,
तो अब वो बॉल जो है कैटलिस्ट का पार्टिकल है उसके अंदर तो रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन सिर्फ सरफेस के ऊपर हो रहा है। इसलिए हम जो है जब हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो रहा होगा तो वो वॉल्यूम सोर्स नहीं होता बल्कि वो सरफेस सोर्स होता है, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो एक स्पेसिफाइड सरफेस, किस तरह एक क्रिकेट बॉल है तो क्रिकेट बॉल होगा, गेंद होगा, उसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा होगा। फुटबॉल है, फुटबॉल समझ लें कैटलिस्ट का पार्टिकल है तो सिर्फ सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। तो इस केस के अंदर जब हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है तो तब हम लिखते हैं एन, तब हम जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है उसको एज अ बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन को एज अ सोर्स टर्म लिखते हैं और हेट्रोजीनियस रिएक्शन को एज अ बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री के ऊपर हो रहा होता है, सरफेस के ऊपर हो रहा होता है। सो इन दिस केस हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एन इज जेड और स्पेसिफाई कर देते हैं सरफेस के ऊपर, यानी नंबर ऑफ मोलर फ्लक्स एट सरफेस दैट इज इक्वल टू के रेट एंड सी एट द पावर एन एट द सरफेस। हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ये भी सरफेस के ऊपर है और ये जो मोलर फ्लक्स है ये भी सरफेस के ऊपर है। सो इन द हेट्रोजीनियस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन अपीयर एज द बाउंड्री कंडीशन एंड इन द केस ऑफ होमोजेनियस रिएक्शन the rate of reaction appear as the source term. Like in the energy balance there was the source term by the chemical reaction, by the nuclear reaction, by the viscous dissipation, by the electrical current passing. So these were the source term. So in the case of the chemical reaction, in the case of the mass transfer, the source term will only appear when it is a homogeneous reaction. If it is a heterogeneous reaction, it will appear as a boundary condition, not as a source term. तो अगेन अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो हमने देखा जी कि ये रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट है और रेट ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये इन आउट जो होता है ये कंडक्शन के थ्रू भी हो सकता है और कन्वेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। और वो जो हमने NaZ लिखा है वो NaZ जो है वो कंबाइंड फ्लक्स है। जैसे कि याद होगा कि हमने फाई मोमेंटम ट्रांसफर के केस में फाई में हमने कहा था कि इसके अंदर जो है वो कंडक्टिव मोमेंटम भी आ जाएगा, उसके अंदर कन्वेक्टिव मोमेंटम भी आ जाएगा, उसके अंदर मॉलिक्यूलर, तो उसको हमने लिखा था फाई। ठीक है, इसी तरह हमने जब एनर्जी बैलेंस किया था तो हमने कंबाइंड एनर्जी की टर्म यूज की थी। सिमिलरली जब हम मास बैलेंस लिख रहे हैं तो हम कंडक्शन के लिए अलहदा, कन्वेक्शन के लिए अलहदा टर्म नहीं लिखेंगे, दोनों को मिलाकर हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, हमने एक लिखा हुआ है NaZ, जबकि NaZ के अंदर इज द कंबाइंड फ्लक्स ऑफ A ड्यू टू कंडक्शन प्लस ड्यू टू कन्वेक्शन। ओके, तो जब हम एक शेल कंसीडर करते हैं और शेल के अंदर हमने जब एनर्जी बैलेंस भी लगाया या मोमेंटम बैलेंस भी लगाया या अब इस चैप्टर के अंदर हम मास बैलेंस लगाएंगे, तो बेटा आपको पता है कि हमें सबसे पहले क्या चीज मिलती है। नाउ द योर टर्न यू पीपल टर्न। जब हम मोमेंटम, जब हम मास बैलेंस लगाएंगे, शेल मास बैलेंस लगाएंगे, सो एज अ रिजल्ट ऑफ शेल मास बैलेंस हमें क्या पैरामीटर मिलेगा, कौन से पैरामीटर की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी? एनी वन ऑफ यू? फ्लक्स सर, सबसे पहले फ्लक्स मिलता है हमें। फ्लक्स मिलता है, वेरी गुड। सो so, मास फ्लक्स हमें मिलेगा। जी अब्दुल वासे आप क्या कह रहे हैं? जी आमिर जुबैर? मास या मोलर फ्लक्स मिलेगा। जी मास या मोलर फ्लक्स जो है वो मिल जाएगा। तो जब मास या मोलर फ्लक्स मिलेगा तो उसके बाद क्या करेंगे? जी आमिर, उसके बाद उसमें हम लोग उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ जी, उसके बाद सॉरी उसके अंदर हम लोग लॉ पुट करेंगे, फिक्स लॉ, और फिर हम उसकी इंटीग्रेशन वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी विल पुट द फिक्स लॉ। जब हम फिक्स लॉ पुट करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ फिक्स लॉ वी विल गेट द कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मोमेंटम बैलेंस में हमें पहले मोमेंटम फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलती थी, उसके बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती थी। एनर्जी बैलेंस के केस में वी फर्स्ट गोट द एनर्जी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी पुट द फोरियर्स लॉ and then we get the temperature distribution. Similarly, in the case of mass transfer, when we will apply a shell mass balance or shell mole balance,
अब मास के केस में ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि मास बैलेंस अप्लाई करना है या मोल बैलेंस अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी क्योंकि दो किस्में हैं, तो मास की टर्म में भी चल सकते हैं, मोल की टर्म में भी चल सकते हैं। यूजुअली जब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो हम मास की बजाय हम मोल बैलेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन को, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन को और मास बैलेंस की इक्वेशन को कंबाइन सोल्व करना होता है तो तब मास बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। और ये थोड़ी सी मजीद आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पहले मास फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, उसके अंदर फिक्स लॉ पुट करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन प्रोफाइल मिल जाती है कि कंसंट्रेशन जो है वो किसी एक खास एरिया के अंदर किसी एक खास डायमेंशन में किस तरह चेंज हो रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब हमने सोल्व करना होता है तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपीयर होते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होती है बाउंड्री कंडीशंस। सो यहाँ पर भी मास बैलेंस के केस में भी बाउंड्री कंडीशन जो होंगी would be similar as that of the momentum balance and that of the energy balance. For an example, पहली बाउंड्री कंडीशन हो सकती है जी, बाउंड्री कंडीशन नंबर ए क्या हो सकता है जी कि हम जो है वो कंसंट्रेशन या फ्रैक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं सरफेस के ऊपर। हम कह सकते हैं जी किसी खास सरफेस के ऊपर XA is equal to XA नोड, जैसे हम कहते थे जी कि सरफेस के ऊपर T is equal to T नोड के टेम्परेचर इनिशियल स्पेसिफाई कर सकते थे। तो एक बाउंड्री कंडीशन ये हो सकती है मास बैलेंस के केस में कि हम जो है वो कंसंट्रेशन स्पेसिफाई कर देंगे। सेकंड ये हो सकती है कि हम कंसंट्रेशन की बजाय फ्लक्स स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज NAZ is equal to NA नोड, कि किसी खास सरफेस के ऊपर जो A का फ्लक्स है वो इनिशियल NA नोड के बराबर है। ये बाउंड्री कंडीशन की एक टाइप है। जब आगे हम केस सोल्व करेंगे तो आपको इनकी मजीद जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सिमिलरली एक बाउंड्री कंडीशन क्या हो सकती है, लेट अस टेक द केस के कोई एक जो है वो मटेरियल है, वो एक स्पीशीज है और वो सॉलिड में से डिफ्यूज कर रही है और सॉलिड में डिफ्यूज करके वो सॉलिड सरफेस के साथ एक लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो सॉलिड में से पास होके तो वो बल्क लिक्विड में वो शामिल हो रहा है, ठीक है। आप समझ लें कि एक जिस तरह हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि वो सिलिका की प्लेट है और उसके अंदर से हीलियम गुजर रही है, हीलियम डिफ्यूज हो रही है, तो हीलियम डिफ्यूज होने के बाद वो एयर में ऊपर एयर फ्लो हो रही है तो वो एयर में शामिल हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स कि एक सॉलिड सरफेस है और उसके साथ जो है ना वो लिक्विड या गैस की जो है ना वो बल्क फ्लो हो रहा है। कोई एक कंपोनेंट जो है वो सॉलिड में से डिफ्यूज करके तो वो जो बल्क फ्लो हो रहा है उसमें शामिल हो रहा है। तो इस केस में हम NA नोड हम स्पेसिफाई करेंगे कि NA नोड इज इक्वल टू K CA नोड माइनस CAB, where NA नोड इज द मोलर फ्लक्स ऑफ A एट सरफेस, कि बिल्कुल वो जो सॉलिड सरफेस पे जब वो A का पार्टिकल आ जाता है तो वो सॉलिड सरफेस से बल्क फ्लूइड में एंटर होता है, तो वहां पर जो फ्लक्स होगा सॉलिड सरफेस के ऊपर दैट इज इक्वल टू KC इनटू CA नोड माइनस CAB, वेयर CA नोड क्या है, CA नोड इज द कंसंट्रेशन ऑफ A एट द सरफेस, कि बिल्कुल सॉलिड की सरफेस के ऊपर A की कंसंट्रेशन क्या है एंड CAB इज द कंसंट्रेशन ऑफ A इन द बल्क फ्लूइड, और वो सॉलिड सरफेस के साथ जो लिक्विड या गैस का बल्क फ्लो हो रहा है उसके अंदर A की कंसंट्रेशन क्या है। तो सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन माइनस जो बल्क फ्लूइड है उसके अंदर कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ जाएगा, तभी तो वो सरफेस से बल्क फ्लूइड में पार्टिकल जो है वो चला जाएगा, डिफ्यूज कर देगा। एंड KC K sub C इज द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। सो ये है लॉ मास ट्रांसफर के लिए। क्या इस तरह का कोई सिमिलर लॉ हीट ट्रांसफर के लिए भी है और उस लॉ का नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है सर। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का उसका नाम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कि जब हम कहते हैं कि एक सॉलिड सरफेस से हीट डिफ्यूज होती है और डिफ्यूज होने के बाद सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है वो बल्क लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वो सॉलिड सरफेस से हीट जो है वो बल्क लिक्विड में ट्रेवल कर जाती है। सिमिलर द केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, के हीट एक्सचेंजर की कोई ट्यूब कंसीडर कर लें तो वो हीट जो है वो ट्यूब की वॉल में से गुजरती है
और उसके बाद वो ट्यूब के अंदर जो लिक्विड गुजर रहा है, बल्क या जो गैस बल्क गुजर रही है, उसमें शामिल हो जाती है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि हीट की बजाय कोई जो है वो मास का पार्टिकल गुजर रहे हैं, मास फ्लो हो रहा है, मास डिफ्यूज हो रही है सॉलिड में से और उसके बाद वो बल्क लिक्विड में जाके शामिल हो। तो सिमिलर लाइंस के ऊपर जिस तरह के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था, सिमिलरली वी कैन डिफाइन द लॉ फॉर द मास ट्रांसफर। कब अप्लाई करेंगे? जब एक सॉलिड सरफेस और बल्क लिक्विड के दरमियान जो होगी वो मास ट्रांसफर हो रही होगी। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज द बाउंड्री कंडीशन। और फाइनली जो चौथी कंडीशन है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट द सरफेस कैन बी स्पेसिफाइड। तो पहली बाउंड्री कंडीशन थी कि कंसंट्रेशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी कि मोलर फ्लक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, तीसरी बाउंड्री कंडीशन थी कि सॉलिड सरफेस से लिक्विड को ट्रांसफर हो रही है मैस, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की तरह का एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और चौथी जो है वो ये है कि हम किसी सरफेस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव उसी तरह जिस तरह हमने मोमेंटम ट्रांसफर और हमने एनर्जी ट्रांसपोर्ट स्टडी किया है कि हम सिस्टम के अंदर एक शेल कंसीडर करेंगे, उस शेल की कोई थिकनेस होगी, मे बी डेल्टा एक्स, मे बी डेल्टा वाई, मे बी डेल्टा जी। उस शेल के ऊपर हम ये वाली जो मास बैलेंस की इक्वेशन है ये किसी कंपोनेंट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो हमने टर्म लिखी है उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद हम मास फ्लक्स ऑब्टेन करेंगे। मास फ्लक्स ऑब्टेन करने के बाद हम कंसंट्रेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑब्टेन करेंगे और वो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं उनको हम सोल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा। जी अकमल, आपको समझ लग गई है? अकमल फैजान नदीम। जी सर लग गई समझ। फैजान नदीम सर आवाज आ रही है बेटा? ठीक। जी मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रेहान। जी सर। जी बेटा थोड़ा सा ऊंची आवाज में आप थोड़ा सा जल्दी से 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं इस स्लाइड को? जी मुदस्सर, मुदस्सिर। जी रेहान आप माइक ऑफ कर लो। मुदस्सर जी बेटा आप इसको रिवाइज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी से? सर जो स्लाइड हमने अभी स्टडी किया सर। जी जी ये जो स्लाइड आपको शो हो रही है बेटा, स्लाइड शो हो रही है कोई? जी सर शो हो रही है। जी बेटा इसको आप जल्दी से, अगर आपकी बजाय जो है ना वो जी सर ये हमने शेल को कंसीडर किया हुआ, तो सर उसमें हमने जो कंबाइंड हमारा मैस फ्लक्स है वो हमारा एन है, ए हमारा जो कंपोनेंट है वो बीइंग ट्रांसफर्ड है और जी हमारी डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में वो ट्रांसफर हो रहा है सर। ठीक है। ये हमारी सर डिफ्यूजिविटी है और ए बी सर ये हमारा जो कंपोनेंट ए है वो बीइंग ट्रांसफर्ड हो रहा है, एक्स ए सर उसकी फ्रैक्शन है और जी उसकी डायरेक्शन है सर। तो ये टोटल को हम सर कहते होते हैं कंडक्टिव फ्लक्स। ठीक है सर उसके बाद ठीक है से हम सर हम आते हैं। जी सर ठीक है बेटा आप ऑफ कर लें। हमारे सईद खान साहब, सईद साहब आप इधर तशरीफ रखते हैं? जी सर। सईद साहब आप ये पिछली स्लाइड बोलना शुरू हो गया था, आप थोड़ी सी इस स्लाइड को जल्दी से 30 सेकंड के अंदर थोड़ा सा कर सकते हैं समराइज? यस सर, इसमें सर हमारे पास एक सिलेंडर ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड फ्यूमिंग लिक्विड पड़ा हुआ है जो इवेपोरेट हो रहा है। ऊपर उसके एक जो है ओपन है, उस जो ट्यूब है वो ओपन है और एक एयर स्ट्रीम चल रही है जो उसकी कंसंट्रेशन जो जहाँ से फ्यूम हो रहा है वहाँ पर 0 हो जाएगी और यहाँ जब जहाँ पर Z = Z1 है यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अच्छा आप अगली स्लाइड करना शुरू करें? अच्छा चलिए ठीक है। ओके लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट केस। अब हम जो है वो फर्स्ट केस जो है वो उसको कर रहे हैं।
The first case is the diffusion through a stagnant gas film. हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा अभी पहली 2 स्लाइड्स में हमने थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा कि हमने शेल बैलेंस किस तरह अप्लाई करना है। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट केस। द फर्स्ट केस इज अ वेरी सिंपल केस। जैसे आपको पता है कि जब हम मोमेंटम शेल मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करते हैं हम बड़े सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं। So in the mass transfer we are starting from the possibly simple case, that is diffusion through a stagnant gas film. तो हो क्या रहा है बेटा कि जस्ट ये जो फिगर आपको शो हो रही है, इस फिगर में जस्ट कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, यानी कि समझ लें कि पानी का गिलास है और इस पानी के गिलास में जो है एक लिक्विड ए जो है वो भरा हुआ है और Z इज इक्वल टू Z1 तक जो है ना वो लिक्विड जो है ना इसके अंदर फिल है, ठीक है। जस्ट लाइक आप समझ लें कि ये एक सिलेंडर है, यहाँ एक गिलास है और उस गिलास के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, जहाँ कोई लिक्विड ए फिल्ड है, उस लिक्विड ए की जो हाइट है वो Z इज इक्वल टू Z1, उसकी हाइट फिक्स है। अगर हम उस गिलास की या उस सिलेंडर की टोटल हाइट की बात करें तो Z इज इक्वल टू Z2 जो है इसकी उस गिलास की या उस सिलेंडर की जिसके अंदर लिक्विड फिल है, ठीक है, लेकिन सरफेस जो है Z इज इक्वल टू Z1 तक फिल है। अब ये हो क्या रहा है कि ये लिक्विड ए जो है ना ये इवेपोरेट कर रहा है, मींस के इस सरफेस के ऊपर जो लिक्विड की सरफेस है यहाँ से ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ए के जो पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं और इवेपोरेट होके ये सिलेंडर के अंदर से गुजरते हुए ये बाहर तक पहुंचेंगे और ऊपर क्या हो रहा है, बाहर से एक गैस स्ट्रीम है A प्लस बी की, तो उस सिलेंडर के ऊपर से A प्लस बी की जो गैस स्ट्रीम है वो स्लोली वो उस सिलेंडर के ऊपर से पास कर रही है, ठीक है। इट मींस के ऊपर क्योंकि सिलेंडर की जो सरफेस है वो ओपन, इट मींस के यहाँ सिलेंडर के ऊपर भी यहाँ भी A प्लस बी का मिक्सचर होगा, ठीक है बेटा, यहाँ भी जहाँ मैंने ये लाइनें लगा रहा हूँ इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर यहाँ भी A प्लस बी का मिक्सचर होगा और ऊपर भी जो है वो A प्लस बी जो है वो पास हो रहा है, जो कि B जो है दैट इज अ नोबल कंपोनेंट है, B जो है वो डिसोल्व नहीं होता A के अंदर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि A को कंटिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा है और कंटिन्यूसली वो सिलेंडर के बीच में से फ्लो कर रहा है। अब A जो है वो B में से फ्लो कर रहा है, तो हमने यहाँ पर अजम्पशन ली हुई है किसकी जी, स्टैग्नेंट गैस फिल्म। अगर आप इस टाइटल में देखें तो टाइटल में लिखा हुआ है स्टैग्नेंट गैस फिल्म। इट मींस के यहाँ पर जो है बी जो है वो स्टैग्नेंट है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर बी स्टैग्नेंट है और स्टैग्नेंट बी में से ए के मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारा सिस्टम जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा हमने सिंप्लीफाइड सिस्टम कंसीडर किया, क्या है जी कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक हाइट Z इज इक्वल टू Z1 के ऊपर एक लिक्विड पड़ा हुआ है और फिर हम कह रहे हैं जी कि लिक्विड के जो पार्टिकल है, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेटिंग फॉर्म में है, और हम कह रहे हैं कि लिक्विड के ऊपर जो सरफेस है उसके अंदर कोई गैस B जो है वो फिल है और A को जो है उस B में से डिफ्यूज होना पड़ेगा और डिफ्यूज होने के बाद वो सरफेस तक आएगी और उसके बाद ऊपर एक बल्क फ्लो हो रहा है AB का, उसमें शामिल हो जाएगी। सो A जो है वो डिफ्यूज कर रहा है और कंपोनेंट B जो है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है बेटा। सिस्टम की समझ लग गई आपको। अहमद शाह साहब, अहमद शाह यहाँ पर है, महक रफीक यहाँ पर है। यस सर। जी बेटा आपको सिस्टम की समझ लग गई है? यस सर। जी राफे यहाँ पर है? यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। बेटा ये अजम्पशन हमने क्या लिया है सिस्टम में, जल्दी से इस सिस्टम को जो है ना जरा दोबारा रिवाइज कर दो। यस सर।
सर एक सिलेंडर हमने लिया है, सर एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर हमारे पास लिक्विड ए है जो कि Z1 तक फिल्ड है, ठीक है। उसके ऊपर सिस्टम की जो टॉप वॉल है, जो टॉप लिड है, वो हमारी ओपन है। उसके ऊपर दो स्ट्रीम्स जा रही हैं गैस की, एक ए जा रही है, एक बी जा रही है, जो स्लोली मूव कर रही है। मिक्सर जा अब रहा वो है, क्योंकि एक ऊपर स्ट्रीम से है, जा मिक्सर है ए बी। ये सर, सर उसके वो क्योंकि स्लोली जा रहा है, ऊपर से लेट ओपन है, तो इसकी वजह से वो नीचे को भी आ रही है। अब जो ए है, वो बी जो है वो स्टेगनेंट है, बी जो है वो मूव नहीं कर रहा, ए ने उसके अंदर से डिफ्यूज करते हुए जाना है। यस सर, ये है सर, ए ने उसके ठीक अंदर है से बेटा, डिफ्यूज बिल्कुल कर। ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो ये वेपोरेटिंग सिस्टम है, जब ये लिक्विड जो है जब बेटा वेपोरेट हो रहा होगा, इट मींस कि ये Z1 जो होगी नीचे की तरफ मूव करेगी। जब लिक्विड वेपोरेट जो हो रहा है तो ये खाली होना शुरू होगा, लेकिन हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है कि Z1 कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मींस कि कोई ऐसा कोई सोर्स है कि लिक्विड जो है कंटिन्यूसली इसके अंदर फिल हो रहा है, इट मींस कि जैसे जैसे वेपोरेट हो रहा है वो फिल भी होता जा रहा है, और ये सरफेस जो है Z=Z1 पे जो है ना, ये सरफेस कांस्टेंट रहती है। और सेकंड हम कहते हैं कि बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर जो ए की जो गैस फेज कंपोजिशन है वो XA1 है। XA1 is the gas phase composition of component A just at the interface। जो ये जो लिक्विड की सरफेस है, इसके साथ एयर या इसके साथ गैस B जो है, ये एक लिक्विड सरफेस है और उसके साथ एक जो है वो गैसियस सरफेस है, ठीक है। तो जस्ट हम कह रहे हैं कि इंटरफेस के ऊपर जो A की जो गैस फेज कंसंट्रेशन है वो XA1 है, that would be in equilibrium with the liquid phase concentration। तो थोड़ी सी जो है, अगर आप थर्मोडायनामिक्स रिवाइज करें तो जब वेपोराइजेशन हो रही होती है और लिक्विड फेस और वेपर फेस आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो जो लिक्विड फेस कंपोजिशन होती है वो गैस फेस कंपोजिशन के साथ इन इक्विलिब्रियम होती है। और जल्दी से कोई मुझे उस इक्वेशन का, उस लॉ का नाम बता दे कि जब वेपोरेशन हो रही हो तो लिक्विड फेस कंपोजिशन को और गैस फेस कंपोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस लॉ का नाम क्या है? एनीवन? एनीवन ऑफ यू बेटा, क्लास में से कोई भी? रॉल्ट्स लॉ होता है, ठीक है। शायद आपने मैथ ट्रांसफर के सब्जेक्ट में या थर्मोडायनामिक्स में जो है वो इसको पढ़ा हो, ठीक है। सो XA1 क्या चीज है? XA1 बेटा इज नथिंग, जस्ट लिक्विड सरफेस के ऊपर A की जो कंपोजिशन है, A की जो फ्रैक्शन है वो XA1 है, और हम कह रहे हैं Z=Z2 के ऊपर जो A की कंपोजिशन है वो XA2 है। ठीक हो गया बेटा? यानी Z=Z1 के ऊपर जो A की फ्रैक्शन है, A की कंपोजिशन है वो XA1 होगी, और Z=Z2 के ऊपर जो A की कंसंट्रेशन होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन वो XA2 होगी। तो इसके कोरस्पोंडली दो कंपोनेंट है ना यहाँ पर, एक A कंपोनेंट है, एक B कंपोनेंट है। तो जो B कंपोनेंट होगा उसकी XB1 होगी, और जहां पर Z=Z2 के ऊपर वो XB2 होगी। सिमिलरली थ्रू आउट दिस कॉलम, इस कॉलम के अंदर जो A की कंसंट्रेशन होगी वो XA होगी, और जो B की कंसंट्रेशन होगी वो XB होगी, ठीक है। और हमने बाउंड्री कंडीशन जो है स्पेसिफाई की है कि लिक्विड की सरफेस के ऊपर XA की XA1 है, और टॉप Z=Z2 के ऊपर जो A की जो कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन वो XA2 है। और हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया है, क्योंकि सारी हम मैथ ट्रांसफर पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अंदर थर्मोडायनामिक्स भी आएगी, कि जब इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो चुका है और वेपोराइजेशन हो चुकी है, तो आपको पता है कि A का जो पार्शियल प्रेशर है विल बिकम द वेपर प्रेशर। इट मींस के जो XA इज द कंसंट्रेशन इज द फ्रैक्शन ऑफ A कोरस्पोंडिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ A। अब ये थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब एक फुल सैचुरेशन हो जाती है वेपोराइजेशन की, तो तब वो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर में कन्वर्ट हो चुका होता है, और वेपर प्रेशर के कोरस्पोंडिंग जो कंसंट्रेशन है दैट इज XA1, ठीक है। सो एनी हाउ जितना मैं जो है वो आपको थर्मो रिवाइज कर सकता था वो मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है। आप इसको थोड़ा सा जो है वो एक बुक से भी स्टडी करेंगे तो आपको पड़ जाएगा। Now next what we are doing, now we will consider a shell of thickness delta Z।
बेटा इस कॉलम के अंदर जैसे मैंने अभी कहा है कि ए बी जो है वो स्टैग्नेंट है और बी में से ए जो है वो मॉलिक्यूल ए की ट्रैफिक जो है समझ लें कि ये मोटरवे है, ये सड़क है, और इधर से ए के मॉलिक्यूल्स ए की गाड़ियां गुजर रही हैं, ठीक है, और बीच में जो है वो रेजिस्टेंस है बी जो है समझ लें पुलिस है जगह जगह खड़ी है, लेकिन पुलिस जो है वो स्टैग्नेंट है और ए की गाड़ियां जो है वो गुजर रही हैं। तो सिमिलरली बी के जो है वो पार्टिकल्स हैं जो स्टैग्नेंट है और ए बीच में गुजर रहा है। अब मैंने इसको मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, शेल बैलेंस अप्लाई करना है, तो मैंने एक डेल्टा जी जो है डेल्टा जी थिकनेस का शेल कंसीडर किया है। तो डेल्टा जी उसकी थिकनेस होगी और एस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है बेटा, ये जो ग्लास होगा ये सिलेंडर होगा, राउंड होगा ना, तो जब राउंड होगा तो उसका वो जो राउंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एस है, यानी नीचे से वो जो ए आ रहा है, ए के कंपोनेंट आ रहे हैं और उनको जो एरिया मिल रहा है वो कौन सा एरिया है, वो प्लेट की तरह का एरिया है, की तरह का एरिया, क्योंकि ग्लास है ना, सिलेंडर है और उसके नीचे से पानी आ रहा है, तो उसको एरिया कौन सा मिल रहा है, वो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो एस जो है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और डेल्टा जेड जो है उसकी थिकनेस है। अब हम कह रहे हैं कि एन ए जेड जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर यूनिट एरिया एंटरिंग, एन ए जेड प्लस डेल्टा जेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए लिविंग एट जेड प्लस डेल्टा जेड। सो अगर मैं मैथ बैलेंस लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा इस इक्वेशन के अंदर बेटा गौर करें कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है कि S इंटू एन ए जेड एट जेड माइनस एस इंटू एन ए जेड एट पॉइंट जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0। इस शेल मैथ बैलेंस को कौन एक्सप्लेन करेगा? जी तैमूर बेटा आप। जी सर। बेटा इस शेल मैथ सर बैलेंस इसके को अंदर थोड़ा सा यही एक्सप्लेन कर दें। जी सर आवाज आ रही है मेरी? जी बेटा। हेलो जी बेटा बोले। सर इसके अंदर इस तरह ही जिस तरह हमने मोमेंटम बैलेंस और एनर्जी बैलेंस के अंदर लगाया था कि इधर हम चूंकि कन्वेक्टिव कंडक्टिव दोनों को कंबाइन ले रहे हैं, तो हमने टोटल फ्लक्स जिस तरह के पीछे आपने बता दिया अभी, तो वो टोटल फ्लक्स इन एंड टोटल फ्लक्स आउट ये वो लिया हुआ है, मतलब कि हमने डेल्टा जी थिकनेस लिया ना, तो टोटल फ्लक्स इन एट जी माइनस टोटल फ्लक्स आउट एट जी प्लस डेल्टा जी। ठीक है सर, ये हमने उसके अंदर पुट किया उसके शेल। जी सर। एस के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा, एस क्या चीज है? सर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर, वो फिर रेट बन जाएगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया सर। तो वेरी गुड तैमूर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। सो एन ए जेड जैसे मैंने भी आपको बताया, एन ए जेड जो है ना ये फ्लक्स है, ये है मोल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जब हमने रेट ऑफ निकालना है, रेट ऑफ मास या रेट ऑफ मोल निकालना है, तो फ्लक्स को क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब जब एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास रेट ऑफ मास इन, अब ये जो रेट ऑफ मास इन है एन ए जेड जो है, जैसे अभी तैमूर ने बताया कि इसके अंदर ये कंबाइंड फ्लक्स है, इसके अंदर कंडक्शन भी आ गई, इसके अंदर कन्वेक्शन भी आ गई है। ठीक है, देन माइनस ये आउट एज इक्वल टू 0 मींस के स्टेडी स्टेट हम लगा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो रिएक्शन की टर्म थी वो नहीं आई, क्योंकि दिस इज अ नॉन रिएक्टिंग सिस्टम, ए और बी के दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट एक फिजिकल इवेपोरेशन का फिनोमिना हो रहा है, डिफ्यूजन का फिनोमिना हो रहा है, देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन। सो हमने प्रोडक्शन की टर्म को 0 कर लिया। ओके बेटा, अब इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इसको होल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द शेल, वेयर वॉल्यूम ऑफ द शेल इज एस इंटू डेल्टा जेड। वॉल्यूम ऑफ द शेल क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा जेड, उससे डिवाइड करेंगे बेटा, एंड देन टेकिंग डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0, ये वही चीज है जो हम करते आए हैं। देन वी विल गेट माइनस डी एन ए जेड, आवर डी जेड इज इक्वल टू 0। उम्मीद है बेटा यहां तक ये समझ लग गई होगी आपको। अहमद शाह यहां पर है, एहतशाम यस सर। बेटा ये फाइनल इक्वेशन क्या चीज है? सर ये हमने सर ने जो फ्लक्स को पहले एरिया से क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई किया
और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया डेल्टा जेड से और लिमिट ले ली है डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 और वो यानी कि लिमिट जो है वो बराबर हमारे पास यानी कि डेरिवेटिव उसका ले लिया। तो ये हमारे पास ये बता रहा है कि हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू जेड इन द जेड डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है मैच फ्लक्स में वो इक्वल टू 0 है और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो उसकी डेंसिटी मतलब उसकी जो क्वांटिटी हो रही है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो वी गेट माइनस डी एन ए जेड और डी जेड इज इक्वल टू 0, माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा, उस तरफ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। अब ये जो स्लाइड के ऊपर जो डाटा है उस पर आ जाए। हम कह रहे हैं कि एन बी जेड इज इक्वल टू 0 है। एन बी जेड इज इक्वल टू क्यों 0 है? जैसे कि अभी हमने कहा कि हमने अजम्पशन ली हुई है और ये एक रियलिस्टिक अजम्पशन है क्योंकि वेपोरेट तो ए हो रहा है तो बी जो है वो स्टैग्नेंट है, इसलिए बी का कोई फ्लक्स नहीं है। बी वहां पर मौजूद है लेकिन बी का फ्लक्स कोई नहीं है, बी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्योंकि बी स्टैग्नेंट है। इट मींस के एन बी जेड जो है वो 0। और शुरू वाली जो भी हमने इक्वेशन लिखी है, जो फर्स्ट स्लाइड में, आज के लेक्चर के फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था, ये वाली के एन ए जेड इज इक्वल टू माइनस सी डी ए बी पार्शियल एक्स ए और पार्शियल जेड प्लस एक्स ए एन ए जेड प्लस एन बी जेड। तो इसके अंदर हम एन बी जेड अगर 0 पुट कर दें, एन बी जेड को 0 कर दें, क्यों? क्योंकि एन बी जेड का बल्क फ्लक्स है ही नहीं कोई। सो वी विल गेट ये एन ए जेड की हमें इक्वेशन मिल जाएगी कि एन ए जेड इज इक्वल टू माइनस सी डी ए बी ओवर 1 माइनस एक्स ए इंटू डी एक्स ए ओवर डी जेड। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो हमने नीचे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है मैथ बैलेंस से, दैट इज माइनस डी एन ए जेड ओवर डी जेड इज इक्वल टू 0, इसके अंदर एन ए जेड की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है एन ए जेड इज इक्वल टू सी माइनस सी डी ए बी और 1 माइनस एक्स ए डी एक्स ए ओवर डी जेड, ये एन ए जेड की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन के अंदर पुट की, अब सिंपली हमने क्या किया है कि डी एन ए जेड की जगह हमने बेटा ये पुट कर दिया, एन ए जेड की जगह हमने ये एन ए जेड की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक हो गया बेटा, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको लिख रहे हैं कि ये जो C इंटू डी डिफ्यूजिविटी है, इस डिफ्यूजिविटी को मैं बेटा इस डिफरेंशियल साइन के बाहर लेकर आ सकता हूं अगर मैं कंसीडर कर लूं कि सिस्टम के अंदर जो डिफ्यूजिविटी है वो कांस्टेंट रहती है, डिफ्यूजिविटी चेंज नहीं हो रही कॉलम के अंदर। अगर मैं ये assumption अप्लाई कर लूं तो इस डिफ्यूजिविटी को मैं इस डिफरेंशियल साइन के बाहर लेकर आ सकता हूं। उसके बाद ये जो साथ C है, C इज द मोलर कंसंट्रेशन, मोलर डेंसिटी। ठीक है, तो C को भी अगर मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लूं, किस तरह कांस्टेंट कंसीडर कर लूं, गौर से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT, और PV इज इक्वल टू nRT है तो वॉल्यूम को अगर मैं n के नीचे ले जाऊं तो P इज इक्वल टू n ओवर V इंटू RT। तो ये n ओवर V जो होता है ये कंसंट्रेशन बन जाती है, C बन जाती है, मींस P इज इक्वल टू CRT। तो अगर प्रेशर भी कंसीडर कर लूं कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कंसीडर कर लूं कांस्टेंट है, और R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो C को भी मैं कांस्टेंट कंसीडर कर सकता हूं। मींस कि हमने C इंटू DAB को कांस्टेंट कंसीडर करना है। जब कांस्टेंट कंसीडर करना है तो इनको डेरिवेटिव साइन के बाहर ले आएंगे। जब डेरिवेटिव साइन के बाहर ले आएंगे तो ये भी उस तरफ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे, एंड वी विल गेट D ओवर DZ into 1 over 1 minus XA into DXA of DZ is equal to 0। जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आई थिंक यहाँ पर लेक्चर में स्टॉप करूंगा, तो आपका कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछ लें। सर ये क्वेश्चन ये था कि ये जो लास्ट इक्वेशन है हमने डिफ्यूजिविटी जो 0 की है, हमने तो ये बात ये अज्यूम किया था कि ए डिफ्यूज होके जा रहा है बी में से, ठीक है, तो वो तो सर 0 नहीं हो सकती, वो हमने कैसे 0 कर ली, ये तो काइंडली जरा बता दें। आप कौन बात कर रहे हो? वकील बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं 256 मोहम्मद नुमान। अच्छा, नुमान साहब।
बात ये है कि बेटा डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि स्लाइड में कि इसको मैंने जीरो के इक्वल लिख दिया, बेसिकली ऐसा नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है। ये बेसिकली हो ये रहा है कि ये जब कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है बेटा तो ये डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाएगी, जब डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाएगी तो ये राइट हैंड साइड पे जाके जीरो हो जाएगी, इस वजह से इसको जीरो, ये नहीं किया कि ये बजाते खुद जो है वो जीरो है, ये नहीं है। ओके ठीक है सर। जी बेटा मजीद इसके बाद क्वेश्चन जी बेटा शाबाश क्वेश्चन पूछे जी। जबरान यूसुफ साहब सीआर। यस सर। जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछे बेटा। समझ लग गई है, सारी समझ लग गई जी। 232 कुछ पूछना चाहता है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी जनाब। सर ये पूछना है कि जो हमने ये फाइनल इक्वेशन पुट की है NAZ की, जिसके अंदर -CDAB dx से डिवाइड, और जिसमें डिनोमिनेटर में 1 - x है, ये कैसे आई है, ये थोड़ा सा बता दें। आप कौन बात कर रहे हैं बेटा? अब्रार सर। मोहम्मद अब्रार। अब्रार सर, सेक्शन B से 232। जी सर। तो तुम्हारी आवाज क्यों बड़ी जो है वो कम आ रही है, माठी क्यों आ रही है आवाज? सर मैं ठीक बोल रहा हूँ। क्या होगा, होता रहता है जिंदगी में इस तरह, जिंदगी में इस तरह होता रहता है यार तुम पर। अच्छा उसमें ये देखो बरार के ये इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सर ये पीछे वाली सर इससे जो पिछली इक्वेशन है जिसको हमने पुट किया तो ये हमारे पास आई है बेसिकली, इससे जो पीछे है। हाँ ये है ना हमारे पास बेटा, डी ये आया था -DNZ और DZ = 0, सबसे एंड वाली इक्वेशन। सर देखिए इसकी ऊपर जो है ना सर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाइंग शेल बैलेंस, इससे जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाली ये कैसे आई है? यस सर। हाँ ये बेटा ये वाली इक्वेशन हमने ली है NAZ, ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है जो भी हमने पीछे पढ़ी थी, जो स्लाइड नंबर 1 पे हमने यही इक्वेशन जो है पढ़ी थी। ये यही इक्वेशन है कि NAZ = -CDAB पार्शियल XA और पार्शियल Z = XA into NAZ + NBZ, ये वही इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हमने कहा कि B स्टैग्नेंट है तो ये NBZ 0 होगा। यस सर। जब NBZ 0 होगा तो यहाँ से NAZ की वैल्यू निकाल ली है। NAZ इधर भी है, NAZ इधर भी है, तो ये दोनों को कॉमन लेकर तो वैल्यू निकाल ली है। ओके सर, ओके। तो NAZ यहाँ से आ गया, तो फिर इस NAZ को की वैल्यू को यहाँ पुट किया डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमने बनाई है, तो हमने यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसके बाद यहाँ पर CDAB को कांस्टेंट लेकर डिफरेंशियल साइन से बाहर ले गए, तो जब डिफरेंशियल साइन से बाहर ले गए तो भी राइट हैंड साइड पे आके 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो। थैंक यू सर, समझ लग गई बस, बहुत शुक्रिया सर। जी बेटा क्वेश्चन पूछे जी। अहमद जी और कौन है यहाँ पर? हाशमी सरमद कौन है? वो मुशर्रिफ हुसैन, मुशर्रिफ। जी हाजरा आमिर। यस सर। जी बेटा क्वेश्चन पूछे तो। सर समझ आ गई है। समझ आ गई है तो पेपर में फिर इस तरह नहीं होना, पेपर में थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट मैंने दे देना, फिर आप
आपको इसको करना पड़ेगा सारा। जी जी जैन सर। अली, ठीक है जैन अली। जी सर। जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछ लें यार। सर समझ लग गई है। जी तैमूर साहब कोई क्वेश्चन पूछ लें। जी जी सर लग गई समझ, बस लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा अगर हो सके। लेक्चर अपलोड क्या करना है यार, तूने ये लेक्चर मेरे YouTube के चैनल पे कब्जा करके तूने पैसे तो नहीं कमाने हैं। सर अब तो वो भी बंद होने वाली है। बंद होने वाली है। अच्छा चले ठीक है। चले बेटा इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। आप काइंडली जो है ना इस टॉपिक को जो है वो पढ़िएगा, कंप्लीट कीजिएगा और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मैं लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।